Hi everyone, I hope all are fine. Today we will discuss about lead code problems of 20 and the topics is today is the linked list problems and I will solve very easily and I will tell you each and everything. After that I write the code and it's very important code. It's very important questions for you because this question is asked by the Amazon, Facebook and Google also. But if you want to solve linked list problems, then check out my playlist and you can solve it because I solved a lot of questions of lead codes also, like find the length of the linked list, how to insert the element in the linked list, how to remove the element in the linked list, so how to swap the two numbers of linked list. There are many more questions, so you can check out my playlist and solve with me. Okay, after that you can solve this problem also because it's very important problems for you. So let's start today problems, how to solve it and what is the problems and how to write the approach. Okay, and you every time everyone use the pen and paper, because if you want to solve the questions, then you can describe the problems and try run the code so that you can understand what is the how to run the code and how was it going on. ठीक है, so let's start today problems, and today problems see the linked list cycles and you understand the cycles. Agar if you know about the cycles like that, then you can understand what is the problems. So let's start today problems. Given a head, the head of the linked list, and determine the linked list has a cycle in it. Okay, great. That means आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है सिंपली, और उसके अंदर क्या करना है, एक हेड को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे कि there is a cycle in linked list, there is some node in the list that can be reached again by continuously flowing the next pointer. Internally, positions is used to denote the index of the node that is tails. Next pointer is connected to the node. That position is not past the parameter. Okay, great. Return true if there is a cycle in the linked list. Otherwise, return false. ओके ग्रेट, सिंपल. देखो यार, क्वेश्चंस में कुछ हार्ड नहीं है. क्वेश्चंस पढ़ोगे तो थोड़ी सी लेंदी लग रही है, लेकिन क्वेश्चंस में सिंपल इस वर्ड से पता चल जा रहा है कि लिंक लिस्ट साइकिल का मतलब क्या होता है. कि जो लिंक लिस्ट है ना, वो कंटिन्यूअसली पॉइंट कर रहा है किसी को, कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो कहीं स्टॉपेज नहीं है उसको. और जिस लिंक लिस्ट का कहीं पे स्टॉपेज नहीं है, वो रुक नहीं रहा है, दैट मींस वो साइक्लिक फॉर्म में है. अभी चलो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा कि साइकिल का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं. देखो, हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है एग्जांपल 1. उसके अंदर 3 2 0 एंड -4 दिया हुआ है. अगर मैं 3, अभी हमारा तो हेड नॉट इक्वल टू वाला हेड 3 पे गए, फिर 2 पे, फिर 0 पे, फिर 4 पे, फिर पुनः 4 से हम 2 पे आ रहे हैं, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 पे, फिर 4 पे, फिर 4 से हम 2 पे जा रहे हैं. तो ये कंटिन्यूअसली एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, जो कि ये इसका कोई इसका एक तरह से बोल सकते हो कंटिन्यूअसली एक साइकिल फॉर्म में ये कंटिन्यूअसली डेटा को पास कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक फॉर्म होता है लिंक लिस्ट के अंदर. तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे ट्रू. अगर दूसरा एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ भी वही है, 1 से 2 पे गया, 2 से फिर रिटर्न 1 पे आया, 1 से 2 पे गया, 2 से 1. यहाँ पे नल पॉइंटर डिनोट ही नहीं कर रहा है. जब कहीं पे नल पॉइंटर नहीं है, दैट मींस वो साइक्लिक फॉर्म में है. ठीक है, अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे उसका बाद में देखेंगे. एक एग्जांपल आप और देख लो. यहाँ पे सिंपल, कि आपको एक नोड दिया हुआ, यहाँ पे कोई साइक्लिक है ही नहीं. अगर 1 है तो 1 से हम क्या आ रहे हैं, सीधे नल पे पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, और जब नल पे पॉइंट कर रहे हैं तो कोई साइक्लिक बन ही नहीं पा रहा है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे, और ऑप्टिमाइज अप्रोच लगाना है जिसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन लग जाए और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो. हम कोई डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे एक्चुअल में. ठीक है, लिंक लिस्ट का ही केवल यूज करेंगे. हम चाहेंगे तो हैश सेट के द्वारा भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा फिर बढ़ जाएगा ना, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंटर क्रिएट करेंगे. किस तरह से क्रिएट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त. चलो स्टार्ट करते हैं. आपको ये क्लियर हो गया कि साइक्लिक होता क्या है. मतलब लिंक लिस्ट में वो कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, कहीं पे उसका नल पॉइंटर नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली एक साइक्लिक फॉर्म में चलते जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक होता है. अब इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए देखो, मैंने एग्जांपल फर्स्ट जो ये था, इसी को मैंने लिया कि हमारे पास यहाँ पे हेड में कुछ दिया हुआ 3 2 0 और -4 पोजीशन 1 दिया हुआ, क्योंकि 1 से ही बार बार क्या कर रहा है, साइक्लिक फॉर्म में कंटिन्यूअसली ये मूव करते जा रहा है. तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी है ना तो मैं दो अप्रोच लगाता हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आता है, साइक्लिक की आपके माइंड में आता है, तो आपने अगर लिंक लिस्ट में अगर मिड पॉइंट निकाला होगा तो वहां पे याद होगा कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे. एक हम लेते थे स्लो वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, दूसरा फास्ट, जो दोनों हेड को ही पॉइंट करते थे. यहाँ पे सेम अप्रोच लगाने वाला, और वही सेम अप्रोच यहाँ पे लगा के हम क्या करेंगे कि ये पता कर लेंगे ये साइक्लिक है या नहीं है. अगर नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो ये साइक्लिक है, 100% साइक्लिक है. ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पे, क्या 4 नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, 4 डायरेक्ट 2 को पॉइंट कर रहा है. समझ रहे हो, ये साइक्लिक है. लेकिन यहाँ पे देखो अगर 1 के केस में, तो 1 क्या कर रहा है, सीधे नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट क्या है, नल है. टेल इज द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड, टेल इज द रेफरेंस ऑफ द लास्ट नोड, और लास्ट नोड के बाद कोई नोड ही नहीं, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक है. 100% ये क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, इसका अप्रोच क्या होगा. तो मैंने बोला कि आपको दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है, एक स्लो नाम का, या पॉइंटर बोल सकते हो यू कैन से, तो एक स्लो और दूसरा फास्ट. ये दोनों हेड को पॉइंट करेंगे फर्स्ट टाइम, और ये हेड स्लो का हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो फास्ट को 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे. हमें कंपेयर करना है. जब हमारा स्लो और फास्ट दोनों एक ही नोड को पॉइंट करने लगेगा, तो इससे 100% हमें 100% क्लैरिटी मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे जो फॉर्म मिल रही है वो साइक्लिक फॉर्म मिल रही है, तो हमें रिटर्न करवा देना है ट्रू. ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं. अभी मैंने बोला हेड हमारा क्या कर रहा है, हेड, और जो हेड है हमारा, जो दोनों है हमारा स्लो और फास्ट, दोनों हेड को पॉइंट कर.
तो मैंने बोला स्लो को एक स्टेप आगे लेके जाना है तो फास्ट को 2 स्टेप आगे लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, चलो कोड के साथ करते हैं, सिंपल अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें 2 वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या नाम है, लिंक लिस्ट नोड नाम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे सिंपल लिस्ट नोड, और इसमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एक तो स्लो होगा जो कि हेड को ही पॉइंट करेगा, ठीक है, और एक यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं फास्ट। चलो ये भी किसको पॉइंट करेगा, तो हेड को ही पॉइंट करेगा, करेक्ट। आप लिस्ट नोड लिस्ट नोड स्लो इक्वल टू हेड, फिर लिस्ट नोड फास्ट इक्वल टू हेड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों को एक ही साथ डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है, क्योंकि दोनों हेड को पॉइंट कर रहा है तो हेड को तो नहीं बोलेंगे ना हेड नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे फास्ट को चेक करते हैं कि अगर हमारा जो फास्ट है अगर नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि ये भी हेड को पॉइंट कर रहा है। एंड यहाँ पे एक अप्रोच और, कि जो हमारा फास्ट का नेक्स्ट है, पूरा मिड पॉइंट का ही मैंने लॉजिक लगाया है, ठीक है। फास्ट के नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करो आप, यहाँ पे अपने स्लो को एक स्टेप आगे लेके जाओ। तो स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट कर दो, सिंपल। और अपने फास्ट को कितने स्टेप लेके जाना है, 2 स्टेप। तो फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। अभी इसको ड्राई रन भी कर दूंगा ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया। अब समझना है इसका कहने का मतलब क्या है। मेरा भी जो हेड है, दोनों जो हेड है स्लो और फास्ट दोनों हेड को पॉइंट कर रहा है, ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा अप्रोच, जब मैं यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि अगर हमारा फास्ट हेड को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे फास्ट हमारे यहाँ पे है और स्लो भी हमारा यहाँ पे है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्लो भी हमारा यहाँ पे है और फास्ट भी हमारा कहाँ पे है, तो यहीं पे। चलो ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहीं पे मैंने बोला कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल, तो देखो हाँ 3 नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि 3 के बाद 2 हमारे परसेंट है, यहाँ पे हमारा लिंक्ड है। मैंने बोला फास्ट का नेक्स्ट चेक करो, तो फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नॉट इक्वल टू नल। अब इसके नेक्स्ट भी क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, जाहिर सी बात है। तो अगर नॉट इक्वल टू नल है तो अपने स्लो को एक स्टेप आगे ले जाओ। तो अभी स्लो हमारा 3 को पॉइंट कर रहा था, वो अब क्या करेगा, स्लो 2 को पॉइंट करेगा। फास्ट को 2 स्टेप आगे लेके जाओ, तो फास्ट अब किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करने लगेगा, सिंपल, ठीक है, 0 को पॉइंट करने लगा। अब मैंने फिर से चेक किया ये काम करने के बाद, तो अब ये काम हमें तब तक करना है जब हमारा फास्ट और स्लो दोनों एक ही नोड को पॉइंट ना करने लगे। कहने का मतलब कि जैसे ही यहाँ पे कि इफ अगर हमारा स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न ट्रू की ये साइक्लिक है। अभी वो चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट किए। तो अभी फास्ट और स्लो इक्वल नहीं है, फिर से हमने फास्ट के पास गया, मैंने बोला कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे चेक किया क्या, हाँ फास्ट नॉट इक्वल टू नल। क्या फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। तो अपने फास्ट को अपने स्लो को एक स्टेप आगे मूव करो, तो अब यहाँ पे स्लो 0 पे चला जाएगा, करेक्ट। और फास्ट को जब 2 स्टेप लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप हुआ, ये देखो यहाँ पे आया एक स्टेप, और एक स्टेप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसमें देखना, इस फिगर आउट में जो इमेज दिया हुआ है 4 से डायरेक्ट ये 2 पे आ रहा है, तो नेक्स्ट नोड हम जब बोलेंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट 4 पे आया डॉट नेक्स्ट, तो ये सीधे किसको पॉइंट करेगा, सीधे 2 को पॉइंट करेगा। तो डायरेक्ट हमारा 4 किस पे आ जाएगा, फास्ट, तो हमारा 2 पे आ जाएगा, ग्रेट, यहाँ पे आ गया। अब ये काम हो गया। फिर से मैंने चेक किया क्या स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट है क्या, अभी भी दोनों इक्वल नहीं मिले। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर से चेक करो, क्योंकि अभी हमारा नल नहीं मिला है। तो मैंने फिर से बोला फास्ट को, क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल, देखा हाँ फास्ट नॉट इक्वल टू नल। क्या फास्ट का नेक्स्ट जो हमारा 0 पे नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू, तो स्लो को एक स्टेप आगे ले जाओ। तो मैंने अपने स्लो को मैंने बोला क्या आ जा भाई, अब -4 पे आ जा। तो बोल रहा है कि उसके बाद फास्ट को 2 स्टेप आगे ले जा, तो अभी फास्ट 2 पे है, तो एक एक 2 स्टेप लेके जाएंगे तो हमारा फास्ट भी -4 पे पहुंच जाएगा। जब यहाँ पे चेक करेगा क्या स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट है, स्लो भी -4 है और फास्ट भी इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया, तो इस केस में क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करवा देगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से ये कोड में काम हो रहा है। और बस सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने लूप से बाहर निकलना है। और अगर आपको ये ऐसा नहीं मिलता कि फास्ट इक्वल इक्वल टू स्लो नहीं मिलता है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, इस पूरे एलिमेंट से बाहर निकलना इससे, और हमें रिटर्न करवा देना फॉल्स, और कुछ नहीं, रिटर्न फॉल्स, कि भैया हमें वो एलिमेंट जो साइक्लिक था वो नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल मिल गया तो वो साइक्लिक है, क्योंकि फिर से आप जब चलेगा ना फर्स्ट, तो फर्स्ट नॉट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट किस पे मूव कर जाएगा, 2 पे मूव कर जाएगा, तो फिर से स्लो को किस पे ले जाएंगे, एक स्टेप आगे, तो 3 पे आ जाएगा। फिर से इस तरह से कंटिन्यूअसली ये प्रोग्रेस में चलते रहेगा। बस ये सिंपल सा कोड था किसका, साइक्लिक का, और हमें बस यही चेक करना था कि ये लिंक लिस्ट साइक्लिक है या नहीं। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने जो लॉजिक लगाया है बहुत सिंपल है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं 100%, ठीक है। इसको सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूँ, और ज्यादा 100% क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो देख सकते हो हमारा सबमिट भी 100% हो गया। और देख सकते हो ज्यादा लाइन का कोड नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा मेरे दोस्त। अगर आपको कोड अगर लिखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोड में एक्चुअल कोड चल क्यों, क्योंकि इसे रट्टा नहीं मार सकते हो। अगर आप इसको रट लोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर मैं चाहता तो मैं क्या करता, कोड लिख देता, मैं आपको समझाता नहीं कि कोड चल क्या है, क्योंकि ड्राई रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनसाइड द कोड। अगर कोड में क्या कैसे चल रहा है आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप कोड को इजीली लिख लोगे। ये मेरी गारंटी है, जो कि मैं अभी तक जितना कोड लिखा हूं मैं इसी तरह से सोचता हूं पहले कि कोड में ड्राई रन करूं कोड को, ताकि हमको 100% क्लैरिटी मिलेगा, तो बंदा को जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उसको 100% क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। आई होप कि आपको 100% ये लिंक लिस्ट साइक्लिक का जो कोड है वो 100% समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।